Good morning, students. We'll start with our today's lecture. We'll continue with finding of due date. Okay. Now that day we had solved three sums. Now this is the fourth one, so that you can understand the concept very clearly. Okay. Now the fourth sum which I have taken, I will read first that sum. A bill dated 23rd December 2019 is payable 1 month after the date. It was accepted on 26 December 2019. Calculate the due date. एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि when the due date is the credit period of the due date is given in months, इट इज़ वेरी इजी टू कैलकुलेट द ड्यू डेट. आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है. डायरेक्टली यहाँ पर बिल कब हमने ड्रॉ किया, वी हैव ड्रॉन द बिल ऑन 23rd December 2019. यहाँ तक क्लियर हुआ. दिस इज द डे ऑन विच वी हैव ड्रॉन द बिल. इस तारीख पर हमने बिल ड्रॉ किया. क्रेडिट पीरियड कितना दिया है? द क्रेडिट पीरियड गिवन टू अस इज 1 month. ओके, यहां तक क्लियर हुआ. बिल कब ड्रॉ हुआ? 23rd December 2019 को. क्रेडिट पीरियड कितना मिला हमको? 1 month का. यानी कि 23rd December से अगर हम 1 month कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 1 month कंप्लीट होता है 23rd January 2020. 19 December है, यहाँ पर यह चेंज हो जाएगा 2020. ओके, दिस विल बी द डेट. अब इसमें आप 3 days ऐड करोगे, ग्रेस डेज, दैट इज योर ग्रेस पीरियड 3 days. देन योर ड्यू डेट विल बी 26th January 2020. और लास्ट लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था, इफ यू आर गेटिंग द ड्यू डेट 26th Jan and 26th Jan is a public holiday. That also I explained in last lecture. So what we are supposed to do? Our due date will be not 26th Jan, our due date will be 25th January 2020. यहाँ तक समझ में आया? आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन, डोंट टेक टेंशन. ओके, पहली बात, जब भी आप ड्यू डेट फाइंड आउट करोगे, ड्यू डेट के लिए कोई सम नहीं आएगा. ड्यू डेट दे कैन आस्क यू इन ऑब्जेक्टिव्स. और सेकेंडली, वेर यू रिक्वायर्ड टू सॉल्व योर जर्नल एंट्री सम्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, वहां पर आपको ड्यू डेट पता होगी, तभी आप डेट कॉलम में डेट लिख पाओगे. ओके, नाउ द बिल वॉज ड्रॉन ऑन 23rd December 2019. ओके, though it was accepted on 26th December, will not take this date, will take only this date, the day on which the drawer has drawn the bill. Okay, अब 23rd December को उसने बिल ड्रॉ करके दिया. क्रेडिट पीरियड 1 महीने का था. 23rd December से लेकर 23rd Jan तक हमारा 1 month कंप्लीट हो जाता है. ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ? Add 3 days of grace day. What will be our due date? 26 Jan, but 26 Jan is a public holiday. And on public holiday, we can't tell anyone to make payment. So what we will do? One day before the public holiday, we'll tell the person, the drawee, to make the payment of the bill. And one day before is 25th January 2020 will be the due date for this sum. Clear till here? Any doubt? Okay. Now we'll go for the next one. See the next sum. Fifth sum is a bill dated 27th December 2019, payable 2 months after sight. When this word is used in your question, what you are supposed to do? If it is used for performa format of bill of exchange, don't take tension there. I told you, I have explained already what you are supposed to do. Just you have to write 2 month after the date की जगह पर आप लिखोगे 2 month after sight. Okay, but if it is given in journal entry, when you are doing journal entry sum, there they are using the word after sight. While calculating the due date, what you are supposed to do? Though the bill was drawn on 27th December, but it was accepted on 31st December, in case of after sight bill, will take this date for calculation of due date, not this one. Okay, जब हमको क्वेश्चन में आफ्टर साइट यूज किया है, आफ्टर साइट का मतलब है कि इसमें जब आप ड्यू डेट कैलकुलेट करोगे, आप इस तारीख पर नहीं कैलकुलेट करोगे. द डेट ऑन विच द ड्रॉवर हैज ड्रॉन द बिल विल नॉट कैलकुलेट द ड्यू डेट ऑन दैट डेट, बट विल कैलकुलेट ऑन द डेट ऑफ
एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पर हमारी डेट है 31 दिसंबर 2019 and the credit period given to us is 2 months. Okay, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब 31 दिसंबर से अगर हम 2 महीने कैलकुलेट करते हैं तो 31 दिसंबर टू 31 जैन 2020 हमारा 1 महीना हो गया, एंड टिल 29 फरवरी 2020 हमारा 2 महीने हो गए। यानी कि हमारे 2 महीने कब कंप्लीट हुए? 29 फरवरी 2020 को हमारे 2 मंथ्स कंप्लीट हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द रूल यू आर सपोज टू ऐड 3 days एक्स्ट्रा, विच आर दिस डे? दिस आर नोन एज ग्रेस डेज। यहाँ तक क्लियर हुआ? 3 दिन ऐड करने के बाद में हमारी ड्यू डेट क्या आएगी? 3 मार्च 2020 will be the due date for this sum. क्लियर हुआ यहाँ तक? I will explain again. sum क्या था? A bills dated 27 December 2019 payable 2 months after sight. If this word is used in the question, what you are supposed to do? Instead of calculating the due date on 27, the date on which the drawer has drawn the bill, you will calculate it on the date which the drawee has accepted the bill. Okay, इतना ही फर्क है। आप कौन सी तारीख पर बिल का ड्यू डेट फाइंड आउट करना स्टार्ट करोगे? The date on which the drawee has accepted the bill, and the date of acceptance is 31st December 2019, and the credit period given in this sum is 2 months. Okay, clear till here? तो हमने क्या करना है? 31 दिसंबर से लेकर 31 जैन तक हमारा 1 महीना होता है, और 1 फरवरी से लेकर 29 फेब तक लीप ईयर है, 29 फेब तक हमारे 2 महीने कंप्लीट हो जाते हैं। उसमें आप 3 डेज ऐड करोगे तो आपका ड्यू डेट कितना आएगा? योर ड्यू डेट विल बी 3 मार्च 2020। यहाँ तक क्लियर हुआ? When you are supposed to find the due date on accepted date of acceptance, if in your sum they give you the वर्ड आफ्टर साइट, अगर आपको सम में आफ्टर साइट करके दिया हुआ है, ओनली देयर यू आर सपोज टू कैलकुलेट द ड्यू डेट ऑन द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, अदरवाइज यू आर सपोज टू कैलकुलेट ऑन द डेट ऑफ द बिल on the date on which the drawer has drawn the bill. Okay, यहाँ तक क्लियर हुआ? आई थिंक सो अभी 5 सम के एग्जाम्पल देने के बाद में आपको ये समझ में आया होगा कि ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करना है। नाउ विल गो फर्दर एंड कीप इन माइंड ड्यू डेट सम्स नहीं आएंगे। दे कैन आस्क यू दिस कैलकुलेशन ओनली इन केस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स दैट ऑल्सो फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स दे आस्क the bill was drawn on so and so date, these are the credit period, find the due date, वहाँ पर आपको पूछ सकते हैं। और कहाँ पर रिक्वायर्ड है? फॉर सॉल्विंग योर जर्नल एंट्रीज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ओके, only there it is required, because you know journal entry format, the first column itself is date and you're supposed to start the sum with the date. Okay, now we'll go further, we'll take the next term। नेक्स्ट टर्म आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने यहाँ पर लिखा है नोटिंग चार्जेस। अब लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे 2 टर्म, वन ऑनर ऑफ बिल, द सेकेंड वन डिसऑनर ऑफ बिल। अब ऑनर ऑफ बिल मीन्स दैट ऑन द ड्यू डेट इफ द ड्रॉई मेक्स द पेमेंट ऑफ द बिल इज सेड टू बी ऑनर्ड, and if the drawee is not making the payment of bill on the due date, the bill is said to be dishonored. Or as bill of exchange is a legal document, it is a legal instrument, on due date if the drawee is not paying the bill, he has to pay some charges. That charges is known as noting charges. जैसे for example आपको पता होगा हम किसी को चेक के द्वारा अगर पेमेंट करते हैं और
सामने वाले को जब मैंने चेक दिया और उसको चेक के द्वारा पैसा नहीं मिला, यानी कि आपका चेक जो है वो डिसऑनर हो गया। इन सिंपल वर्ड, अगर आपका चेक बाउंस हो गया तो देयर इज सम पेनल्टी, सम अमाउंट विच यू हैव टू पे टू द बैंक because you have not made the payment on the time which the person has put the check, deposited the check in the bank। उसी तरीके से जब बिल ऑफ एक्सचेंज का क्रेडिट पीरियड ड्यू डेट खत्म होता है और ड्रॉई अगर उस तारीख को पेमेंट नहीं करता है तो व्हाट द ड्रॉई हैज टू डू, द ड्रॉई हैज टू पे सम चार्जेस फॉर दैट डिसऑनर टू द नोटरी पब्लिक। नोटरी पब्लिक कौन है? एक इंस्टीट्यूशन है। जैसे हम चेक कहाँ डालते हैं, बैंक में डालते हैं ना, ऐसे नोटरी पब्लिक विल चार्ज सम चार्जेस, दैट चार्जेस इज नोन एज नोटिंग चार्जेस। और नोटिंग चार्जेस किसको पे करने? इट हैज टू बी बोन, इट हैज टू बी पेड बाय द ड्रॉई। एंड ड्रॉई कौन है? वो इंसान है जिसने क्रेडिट में गुड्स खरीदे हैं। यहां तक क्लियर हुआ? द पर्सन हु हैज परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट and who is supposed to do the payment to the drawer, the seller, on the due date is known as drawee। और अगर ड्यू डेट पर ड्रॉई is not making the payment of the bill is dishonored, the drawee has to pay some extra charges to the notary public and that extra charges is known as noting charges। और ये नोटिंग चार्जेस वर्ड आपको सिर्फ ड्रॉई की बुक में यूज करना है, क्योंकि ये खर्चा किसको करना है? सिर्फ ड्रॉई को। ड्रॉवर नीड नॉट यूज द वर्ड इन हिज बुक नोटिंग चार्जेस। यहां तक क्लियर हुआ? नाउ द नेक्स्ट टर्म, if you can see on the screen, I have written bill receivable। Bill receivable and bills payable, last year also you have studied, टर्म्स में भी पढ़ा होगा एंड इन फाइनल अकाउंट ऑल्सो यू माइट हैव स्टडी। अब दोनों को मैं साथ में एक्सप्लेन करती हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिल रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल? अब बिल रिसीवेबल, बिल का मतलब है, आपको समझ में आता है, बिल का मतलब है बिल। रिसीवेबल का मतलब है बिल का पैसा मिलना। बिल्स पेएबल का मतलब है सिंपल वर्ड में, यू आर सपोज टू मेक द पेमेंट ऑफ दैट बिल। नाउ इन दिस चैप्टर, our chapter is bill of exchange, what we are seeing here, एक इंसान बिल ड्रॉ करके दे रहा है, दूसरा बिल पे कर रहा है। तो जो इंसान बिल ड्रॉ करके दे रहा है, he will use the word in his book bill receivable। और कौन ड्रॉ कर रहा है? the drawer is drawing the bill, so drawer will use the word bill receivable in his book while writing the journal entries, and drawee will use the word bills payable in his book while writing the journal entries। So what is the basic difference between the bill receivable and bills payable? Drawer in his book will use the word bill receivable, drawee will write in his book the word bills payable। Okay, bill receivable is an asset, bills payable is an liability। bill receivable जो है वो एक asset है, bills payable क्या है? एक liability है। यहां तक समझ में आया आपको? ओके, कोई डाउट है? यू कैन आस्क मी इन द लाइव सेक्शन, विच आई विल टेक आफ्टर दिस। ओके, आपको पता है अभी हम मॉर्निंग में मैं आपको रिकॉर्डेड यूट्यूब पर लेक्चर भेजती हूँ और फिर दोपहर को हम लाइव लेक्चर्स भी लेते हैं जहाँ पर आप अपने डाउट क्लैरिफाई कर सकते हो। तो कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेरी लिखने की ज़रूरत नहीं है। When I am coming live, you can ask me any question. Okay? यहाँ तक समझ में आया? नोटिंग चार्जेस समझ में आया? नोटिंग चार्जेस आर द चार्जेस which the drawer has to pay when the bill is dishonor। जब बिल डिसऑनर होता है, ड्रॉई has to pay some amount, that amount is known as noting charges। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल is our check। जैसे हम बैंक में चेक डालते हैं और चेक बाउंस हो जाता है, या आप बोलो कि सामने वाला आपको चेक तो दे देता है लेकिन उसके अकाउंट में से पैसा आपको नहीं मिलता है, दैट इज नोन एज, सिंपल वर्ड में आप बोल सकते हो कि चेक क्या हुआ है? चेक बाउंस हो गया है। इन केस द चेक बाउंस, द बैंक हैज टू, यू हैव टू पे सम चार्जेस टू द बैंक। उसी तरीके से जब आप बिल ऑफ एक्सचेंज आपका डिसऑनर होता है, आप ड्यू डेट पर पेमेंट नहीं करते हो, दैट टाइम ऑल्सो the drawee has to pay some charges to the
to the notary public, that charges is known as noting charges. और फिर से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, नोटिंग चार्जेस सिर्फ और सिर्फ ड्रॉई को बेयर करने हैं, ड्रॉई को पे करने हैं, ड्रॉवर का उससे कोई लेना देना नहीं है. और नोटिंग चार्जेस वर्ड अगर क्वेश्चन में दिया गया है कि बिल हैज बीन डिसऑनर्ड एंड द नोटिंग चार्जेस वर पेड, वो खर्चा केवल और केवल ड्रॉई को बेयर करना है. द ड्रॉवर नीड नॉट पे द नोटिंग चार्जेस. Okay, the next word which we took, that was bill receivable and bills payable. Bill receivable क्या है? Bill receivable यानी कि the drawer who draws the bill, he will write in his book bill receivable. Bill receivable word क्यों लिखेगा वो? क्योंकि उसको ड्रॉई से उस बिल के पैसे मिलने वाले हैं. Therefore he will use the word bill receivable in his book, and the drawee who is supposed to make the payment of the bill, he will write the word bills payable in his book. मैंने लिखा भी है. A bill of exchange is treated as bill receivable by the person who draws the bill. Who draws the bill? Drawer. Drawer कौन है? वो इंसान है जिसने क्रेडिट में गुड्स बेचे हैं. Bill receivable is an asset for the drawer. और ड्रॉवर के लिए क्या है? वो एक एसेट है. लास्ट ईयर यू हैव स्टडीड द मीनिंग ऑफ एसेट्स ऑल्सो एंड यू हैव स्टडीड द मीनिंग ऑफ लायबिलिटीज ऑल्सो. यहां तक क्लियर हुआ? अब बिल्स पेएबल का डेफिनेशन क्या? हाँ, यहाँ पर मीनिंग क्या लिखा है हमने? अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज ट्रीटेड एज बिल्स पेएबल बाय अ पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल. बिल पेएबल इज अ लायबिलिटी टू द ड्रॉई. यानी कि बिल पेएबल सिंपल वर्ड में, बिल आपको पता है बिल है, रिसीवेबल का मतलब है मिलने वाला है, पेएबल का मतलब है पे करना है. तो जिसको बिल के पैसे मिलने वाले हैं वो है ड्रॉवर. वो अपनी बुक में वर्ड यूज करेगा बिल रिसीवेबल. जिसको बिल के पैसे देने हैं he will use the word bills payable. Okay, and that person will be drawee. यानी कि जब अब एक नेक्स्ट लेक्चर में हम जर्नल एंट्री स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में, एक दो लेक्चर में जर्नल एंट्री स्टार्ट हो जाएगी, तब आप देखोगे ड्रॉवर की बुक में जब भी ड्रॉवर बिल ड्रॉ करके देगा ड्रॉई को, ही विल यूज द वर्ड बिल रिसीवेबल. एंड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई वी विल राइट द वर्ड बिल्स पेएबल. ओके, अब इसके बाद में we will discuss what you have learned last year, and that is your types of account. Can you see it? This is already taught to you in 11th standard. Okay, types of account, and this types of account, ये तीन जो रूल आपको दिखाई दे रहे हैं. Okay, first one personal account, real account and nominal account. ये रूल्स आपको बिल ऑफ एक्सचेंज की जर्नल एंट्री लिखते समय ये तीन रूल्स आपको फॉलो करने हैं. जैसे हम लास्ट ईयर जर्नल एंट्री लिखते समय ये रूल्स फॉलो करते थे, इन द सेम वे दिस रूल्स हैव टू बी फॉलोड व्हाइल राइटिंग द जर्नल एंट्रीज. दैट मीन्स व्हेनेवर यू आर राइटिंग जर्नल एंट्रीज यू आर सपोज टू फॉलो दिस थ्री रूल्स. विच आर दिस थ्री रूल्स? कौन कौन से हमारे टाइप्स ऑफ अकाउंट है? फर्स्ट वन पर्सनल अकाउंट, सेकेंड रियल अकाउंट, थर्ड वन नॉमिनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट रिलेटेड टू एनी पर्सन, किसी इंसान किसी ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड है, रूल भी वैसा है. इंसान दो ही काम कर सकता है, या तो कुछ ले सकता है या दे सकता है. रूल इज ऑल्सो देयर. इन द सेम वे डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. यानी कि अगर वो इंसान वो ऑर्गेनाइजेशन कुछ रिसीव कर रही है, यू विल डेबिट दैट अकाउंट. इफ दे आर गिविंग समथिंग यू विल क्रेडिट द अकाउंट. Then we have real account. Real account are associated mainly with the assets, property of the business. Rules are also in the same way. Debit what comes in, credit what goes out. For example, furniture, machinery, land, building, all are assets and they are real account. In that case, अगर हमने मार्केट में जाके मशीनरी परचेज की, in that case the machinery is coming inside our business, will debit it. If you are selling the same machinery, it has to be credited. Okay, अगर वो मशीनरी हम बेच रहे हैं तो we'll use the word credit, we will credit it.
और अगर हम मशीनरी परचेस कर रहे हैं, इट हैज़ टू बी डेबिटेड. एंड द थर्ड अकाउंट इज nominal account. Nominal account means debit all expenses and losses, credit all income and gains. And nominal account is associated with expenses, losses, incomes and gains. Okay? यानी कि अगर हमें बिजनेस में खर्चा है तो वो हम डेबिट करेंगे, नुकसान हुआ वो भी हम डेबिट करेंगे, हमको इनकम मिली वो हम क्रेडिट करेंगे, हमको प्रॉफिट हुआ वो भी हम क्रेडिट करेंगे. Go through the lecture, nicely you view it, take paper, take one book, write in that all doubts. Whenever I come live in the afternoon, you can ask me all the doubts. Okay? Take care, stay safe. Thank you.